جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Thanks for having me. ڈاکٹر صاحب اس وقت 2 سے 3 خبریں بڑی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ انڈیا کی اکانومی پہ ہم نے بڑی بات کی کہ کیسے اتنی جلدی کس طریقے سے جو ہے وہ بھارت ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ اگلی سپر پاورز میں جو ہے وہ دوڑ میں بہت تیزی سے شامل ہو چکا ہے. لیکن جو کچھ عرصہ پہلے جو اشاریے تھے، جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے تھے، جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ 2026 میں جو ہے وہ پہنچے گا 4th لارجسٹ اکانومی تک. لیکن اب آئی ایم ایف نے کچھ نیو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے جاپان کو سرپاس کرنے لگا ہے، اور 2025 میں ہی یہ ہونے لگا ہے. یعنی اب وہ 1 سال اور آگے آ گیا، پہلے آ گیا. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ 2027 تک جو ہے وہ 3rd لارجسٹ اکانومی بن جائے گا، جرمنی کو سرپاس کر لے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک مطلب یہ ایگزامپل ہے نہ صرف یہ کہ ساؤتھ ایشین نیشنز کے لیے بلکہ دنیا کے لیے کہ کیسے ترقی کر کے اتنی اس دوڑ میں آپ کیسے اس طریقے سے آگے آتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا ہمسایہ ملک پاکستان ہے، اس نے آئی ایم ایف کے لیے ایک نئی درخواست ڈال دی ہے کہ ہمیں ایک نیا پلان چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ کسی بھی سکسیسفل اکانومی میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینیورشپ. جب تک یہ چاروں موجود نہ ہو تب تک آپ جو ہے وہ ایک فاسٹ پیسڈ اور ابھرتی ہوئی اکانومی نہیں بن سکتے ہیں. انڈیا کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ چاروں ایلیمنٹس موجود ہیں. لینڈ کو ذرا دیکھیں تو لینڈ میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آپ کے نیچرل ریسورسز جو کہ رینیویبل ہوں یا نان رینیویبل ریسورسز ہوتی ہیں. رینیویبل میں جو ہے وہ فارسٹ آ جاتی ہیں، نان رینیویبل میں آپ کے جو ہے وہ منرلز ہیں، آئل اینڈ گیس ہیں، میٹالک منرلز ہیں. جتنے بھی آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں اس میں آ جاتی ہیں. وہ جو ہیں وہ پروڈکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. اگرچہ تھوڑی دیر میں کمپیئر کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ انڈیا کے پاس جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ منرل ریسورسز نہیں ہے، پاکستان کے پاس زیادہ ہیں. لیکن اور اگر آپ جیوگرافیکلی کمپیئر کریں دونوں ممالک کو تو انڈیا جو ہے وہ 7th لارجسٹ کنٹری ہے جیوگرافی کے لحاظ سے. پاکستان جو ہے وہ 34th لارجسٹ کنٹری ہے جیوگرافی کے لحاظ سے، اور اس کے باوجود پاکستان کے پاس منرل ریسورسز زیادہ ہیں. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا لیبر کا. لیبر میں جو ہے وہ آپ کا ہیومن کیپٹل آ جاتا ہے. ہیومن کیپٹل میں جو ہے آپ کے کتنے اسکلڈ ورکرز ہیں، ان کی ٹریننگ کیا ہے، ان کا نالج بیس کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کو ہیومن کیپٹل کہتے ہیں. 3rd جو ہے وہ آپ کا ایکچوئل کیپٹل ہے. کیپٹل از ناٹ منی، کیپٹل از ڈفرنٹ دین منی. اگر دونوں ممالک کو کمپیئر کر لیں تو پاکستان کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ایکچولی. مطلب پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ مطلب اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کو دیکھیں تو تقریباً جو جی ڈی پی جو آپ کا جو وہ ہے وہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تقریباً $2,000-1,500 پر ایئر ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں. لیکن وہاں پر جو ہے وہ چونکہ ان کے 2 چیزیں آلریڈی موجود ہیں، ان کا لیبر ہے، ان کا کیپٹل ہے، وہ ان کو کر کے وہ جو ہے بہت زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں. جو بھی آپ کے بڑے جس سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کو کیپٹل گڈز کہتے ہیں، جس سے آپ چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو کمپیئر کر لیں تو پھر کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کیونکہ انڈیا میں جو ہے نا آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ کتنے موٹر ویز بن رہے ہیں، ان کے ذرا ریل نیٹ ورک کو ذرا چیک کر لیں. پاکستان میں 1 میل بھی زیادہ جو ہے وہ ریل نیٹ ورک نہیں بنا ہے. وہاں پہ آپ ذرا کمپیئر کر لیں کہ کتنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے ان کے فاسٹ جو ہیں وہ کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ. پھر ذرا ان کے ایئر لائن انڈسٹری کو دیکھیں، وہ سب کچھ آپ دیکھیں تو اس سے مشینز کو ذرا دیکھیں، جتنی بھی آپ کے بڑے مشینز بنتے ہیں ان سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں. تو ایک طرف جو ہے وہ کنزیومر گڈز ہوتی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ پروڈکشن گڈز ہوتی ہیں. تو انڈیا جو ہے اٹس ویری گڈ ان دی پروڈکشن گڈز جو کہ آپ کا ایکچوئل کیپٹل ہے. اور جو
फोर्थ चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली ये आपके जो जितने भी आपके लोग हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जहां पर भी हो, वो इन तीनों जो फैक्टर्स हैं उनको वो कंबाइन करते हैं और इनसे वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, जब तक ये एंटरप्रेन्योरशिप मौजूद ना हो, तब तक इवन अगर ये तीन चीजें भी आपके पास मौजूद हों, तब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। वहां पे जरा आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जरा देखें इंडिया में, उनके अपने जो है वो छोटे छोटे उन्होंने जो है वो आउटलेट्स खोली हुई हैं और इससे वो जो है वो प्रोडक्शन कर रही हैं और इससे वो पैसे बना रहे हैं। इसी तरह से पैसा जो है वो बाहर से आ रहा है, पूरी दुनिया से जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप कैपिटल जनरेट करते हैं, जिसकी मुझे ज्यादा समझ नहीं आती है एक्चुअली इकोनॉमी की, लेकिन जो बेसिक जो एलिमेंट्स होती हैं उसकी मुझे थोड़ी सी समझ आती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर आप देख लें तो वो इन सारी चीजों को कंबाइन करके जो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में उन्होंने मतलब इकोनॉमी को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लो थी इंडियन इकोनॉमी को, अब 5वें नंबर पर लेके आए हैं। और जैसे कि आपने कहा बहुत जल्दी जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, जर्मनी और जापान दोनों को वो सरपास कर जाएंगे। सो दिस मींस कि टॉप में सिर्फ जो है वो चाइना और यूएस रह जाएंगे, तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया है, किस तरह इन चीजों को, क्योंकि ये एलिमेंट्स पहले भी मौजूद थी लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से मतलब फैसिलिटेट किया है और रेड टेपिज्म को कम किया है और बाकी चीजों को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि ये सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्टिविटी की शक्ल में इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसी की वजह से आईएमएफ जो है इट हैज टू रिवाइज रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस। एक्चुअली वो इन चीजों को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है वो इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी वो थर्ड पोजीशन पे आने वाली है। तो अगेन अगर पाकिस्तान के साथ अगेन कंपैरिजन कोई नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज मिसिंग है वो है बेसिकली फोकस। कोई फोकस नहीं है इंडस्ट्रीज पे, प्रोडक्शन पे कोई फोकस नहीं है, नॉलेज बेस पे कोई फोकस नहीं है, ट्रेनिंग पे कोई फोकस नहीं है। सब कुछ जो है वो अगेन वो सिक्योरिटी पे सब कुछ फोकस, सारे का सारा जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट की यही बेसिकली फोकस होती है। ऑन द अदर हैंड जो मतलब जो डेमोक्रेटिक जो ममालिक होते हैं उनके जो जो फोकस होते हैं, उनके प्रायोरिटीज जो होते हैं वो डिफरेंट चीजें होती हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जी, तो डॉक्टर साहब इसके अंदर ये भी है, जिस तरह हमने ये बात की कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने अपने, हम पिछले 10 साल उठा के देख लें तो वो पॉलिसीज ऐसी हैं, वो जो यहाँ तक पहुंचे उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स क्या ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर सकती थी? ठीक है, एक स्टैब्लिशमेंट कंसर्न जो आपने बताया वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, जो सिक्योरिटी स्टेट है वो भी अपनी जगह पर है, सब चीजें हैं। लेकिन जिस तरह अभी हमने देखा, बल्कि मैं देख रही थी कि ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट आए जब, तो आपको पता है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ठीक है लेकिन तिजारत जो है ट्रेड के ऊपर अगर हुआ तो पाबंदियां लगेंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसे हर्डल्स मौजूद हैं कि जनाब साम्राज्य ताकतें जो हैं वो रोक देती हैं, उनकी वजह से तरक्की नहीं कर पाए, या जो अपनी पॉलिसीज हैं वो नहीं बना पाए? देखें, अगर हम पाइपलाइन को जरा देखें तो उसमें जो इशू है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो कमिटमेंट की थी वो पूरी ना कर सका। क्योंकि अगर इस पाइपलाइन को आप जरा देख लें, वो है तकरीबन 1800 किलोमीटर्स है, उसमें से तकरीबन 1100 जो है वो ईरान में है, वो ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ जो है वो 700 किलोमीटर पाकिस्तान में है, उस पे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, और ये 2010 से ये प्रोजेक्ट है, ये साइन अप हुआ है 2010 में। अभी जो है वो ईरान पाकिस्तान को बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएगा, और जिससे तकरीबन जो है वो 18 बिलियन का फाइन हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। तो जाहिर है मतलब पाकिस्तान के पास जो है वो तो मिलियंस रुपीस भी नहीं है, तो वो 18 बिलियन डॉलर जो है वो कैसे देगा? ऑलरेडी जो है रुकी डुक और बाकी जो बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कितना फाइन हो चुका है। तो इस वक्त जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है,
जो आईपी गैस पाइपलाइन, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। बाकी मतलब अगर हम कह दें कि ठीक है, अगर हम मान भी लें कि ठीक है अमेरिका की वजह से ये सब कुछ जो है ये नहीं हो सका है, लेकिन बाकी जो रिसोर्सेस हैं उसका क्या हुआ है? ठीक है, आप बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को देख लें, ठीक है, यानी उस इतने उतने रिसोर्सेज वहां पर मौजूद हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज मौजूद हैं, कि वो अभी तक जो है उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट भी गए हैं किसके पास? चाइना के पास गए हैं, जो कि आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, केपी के रिसोर्सेज को जरा देख लें, ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, बेसिकली सिर्फ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है वहां से हो रही है, बाकी जो है वहां पे कुछ भी नहीं हो। नॉर्थ पाकिस्तान सारे का सारा भरा पड़ा है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से। फॉरेस्ट को जरा देख लें कि किस तरह से उनकी जो है वो इलीगल वहां पे लॉगिंग होती है, जिससे कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर उसकी वजह से पैदा हो गया है। लेकिन तो यही बेसिकली वो चीजें हैं कि इंडिया में जो है फॉरेस्ट वो एक अच्छे मकसद के लिए यूज हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में देखें तो इलीगल जो है उसकी लॉगिंग होती है, और वो सारे का सारा जो है वो घर घर के बनाने में बेसिकली इस्तेमाल होता है, और उससे कोई जो है वो फायदा नहीं उठाया जाता है। तो इसी तरह से मतलब जो 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 पॉलिसीज हैं वो डेफिनेटली मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इख्तियार कर सकती है, लेकिन एक तो ये है कि उनके पास इख्तियार है नहीं इस तरह से। मसला यही है बेसिकली, न तो कोई कंटिन्यूएशन भी नहीं है ना। आप जरा ये भी देखें कि इंडियन पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यूअस आ रही है ना, वो तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देयर इज अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, और इसी यही वो चीज है जो कि आपको डिस्टिंग्विश करती है बाकी ममालिक से। ठीक है ना, पाकिस्तान में मसला यही है कि एक गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है, वो साल 2 साल मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक चलती है। ठीक है, उनका भी कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इवन अगर वो कोई पॉलिसीज कर भी लें तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो सब कुछ जो है वो सिरे से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पॉलिसीज नहीं चल सकती। ठीक है, उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, वो नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में, और उसकी वजह से हालत जो है वो यहाँ तक आ गई। सही, बिल्कुल, इसीलिए ये जो है, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है या जो तज्ज़िये किए जा रहे हैं, वो ये है कि इंडिया में अगर मोदी गवर्नमेंट ही आती है, तो फिर ये जो है फिगर्स इस तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन ये दूसरी सूरत में जो है, ये हो सकता है कि आगे चला जाए टाइम। इसी वजह से ये तज्ज़िये किए जा रहे हैं कि जो कंटिन्यूटी है हुकूमत की, यानी जो हुकूमत कुछ करती है, अपने बनाती है, वो अगर अचीव ना कर पाए, तो क्या दूसरी हुकूमत कर पाएगी? लेकिन डॉक्टर साहब, इसके अंदर हमने ये देखा कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स जो हैं बड़ी वो पॉपुलर हो जाती हैं, वो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी जो है वो बात कर देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बात की अफ़गानिस्तान वाली, उस पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। सर, जब ये तालिबान हुकूमत आई थी, तो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी थी और इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, और उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ जो है, उन्होंने ये कहा था कि अफ़गान तालिबान ने काबुल फ़तह कर लिया। ये ट्वीट किया था उन्होंने, जिसके ऊपर हमने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया और हमने कहा ये क्या कहा जा रहा है, तो उसके ऊपर बड़ी हमारे खिलाफ भी लेदे हुई। लेकिन अब उन्होंने, जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने ये ट्वीट किया कि मैंने कहा था कि ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा है, और मैं आज भी इसी ट्वीट पर कायम हूँ कि जिन लोगों, उन्होंने जो सुपर पावर को शिकस्त दी, वो एक मज़लूम की फतह थी, जिसकी मैंने तारीफ की, और तालिबान की काबुल में फतह की आज भी तारीफ बनती है। सर, मेरा सवाल ये है कि वो तालिबान जो कि दहशतगर्दी में जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां से वो जिस तरीके से फट रहे हैं आके, वो उनको रोक नहीं पा रहे, और इसी के साथ उनके अगर इतनी अच्छी जबरदस्त ये फतह है, तो फिर आप अफगानियों को वापस क्यों भेज रहे हैं, और ताल्लुकात इतने खराब क्यों हुए में? और वो पाकिस्तान पे हमले भी अगर कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं उस पर कायम हूँ, बहुत अच्छी बात है। सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये जो है ना, ये इसको क्लासिक डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी है। ठीक है, ये इंसैनिटी की एग्जैक्टली ये डेफिनेशन है जो कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ जो है जो कह रहे हैं कि अपनी बात पे मैं कायम हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा था। लोग जो हैं वो जरा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने पहले जो कुछ कहा था उसका क्या मतलब उसका क्या कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वो जो है उस पोजीशन से पीछे हट जाते हैं, और वो जो है अब कोर्स करेक्शन कर देते हैं, वो रेक्टिफाई कर देते हैं, वो कह देते हैं कि जी मैंने उस वक्त जो कुछ कहा था वो शायद जो है वो इतनी अच्छी बात नहीं थी, और क्योंकि उसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर आप देख लें कि पिछले साल जो है वो पाकिस्तान में कोई 700-800 हमले हुए हैं दहशतगर्दी के, तो कम से कम उसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसको पता होना चाहिए कि 800 हमले जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन चूंकि 800 हमले जो हैं वो केपी और बलूचिस्तान में हुए हैं, जिनको पेरिफेरीज कहा जाता है, तो इसी वजह से मतलब कोई जो है उसको मतलब कोई वो नहीं है, उस पर कोई मसला उसको नहीं है, क्योंकि पंजाब में कोई हमला नहीं हुआ है, तो इसी वजह से मतलब उसके लिए वो कोई मसला है नहीं बेसिकली।
ये तो उसके जो जितना मैं समझता हूँ कि बेसिकली उसका जो जो माइंडसेट है, जो वो उसी उसी एंगल पे जो है वो काम कर रहा है। अम, जो रिलेशनशिप है दोनों ममालिक के, वो उसको आप ज़रा देख लें कि तालिबान अब इतने वो मैं कहूँगा कि मुतनफ़िर हो गए हैं पाकिस्तान से, कि वो जो है वो इंडिया से सपोर्ट मांगने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये तो आपके पॉलिसीज़ का रद्द-ए-अमल है कि देखें, जो कि आपके अपने ही पैदा करदा लोग थे, जिनको आपने खुद भिजवा दिया वहाँ पे, जो मतलब आपने उनको सेलिब्रेट किया, वही लोग विद इन 2 ईयर्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं। तो इससे कम से कम पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और देखें कि उनके जो पॉलिसीज हैं उनका क्या रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है, और लोगों को कितनी तकलीफ जो है वो डाल रहे हैं दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर के, कि लोग जो है वो किस तरह के मतलब अजाब में जो है वो फंसे हुए हैं। आप जरा मतलब बॉर्डर एरियाज को देख लें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, बॉर्डर को खुद देख लें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो इससे थोड़ा सा मतलब जो पॉलिसीज हैं उनमें होना चाहिए था कि वो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते, लेकिन इट सीम्स के ना सिर्फ वो एडजस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है वो उसको डबल डाउन भी कर रहे हैं उसी के ऊपर, उन्हीं गलत पॉलिसीज को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और भी। अब जी उन्होंने जो बात की, जो मैंने सुनी, तो उसने कहा कि तालिबान जो है वही लोग हैं जिनके कंधे पर चादर है, और एक कंधे पर चादर है और दूसरी तरफ पे जो है वो उनके साथ वो क्लाशनकोव है या बंदूक है, जो भी है। ये एक टिपिकल कैरेक्टराइजेशन वो कर रहे हैं पश्तूनों की एक्चुअली। तो यहाँ पे उसका एंगल कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो जो कुछ कर रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सारे पश्तून्स हैं दोनों तरफ, और ये जो है ये टिपिकल जो 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 एथनिक कैरेक्टराइजेशन है वो उन्होंने उसकी की हुई है, जिसको मतलब कंडेम करना चाहिए, और ताकि मतलब जो पश्तून लीडर्स हैं वो उनको एटलीस्ट जो है वो स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए, कि उसको इस तरह की कैरेक्टराइजेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, कि एक पूरी जो है वो एक नेशन है, एक पूरी एथनिसिटी है, उसको जो है आपने कैरेक्टराइज कर दिया है कि ये लोग जो हैं ये बंदूकें उठाए हुए हैं और उसी को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि बेसिकली इनका और कोई काम नहीं है, बस सिर्फ जो है वो जंग लड़ना जो है वो इनका काम है, और कोई भी इनका काम नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब इसी के अंदर ये कि अगर ये समझते हैं कि हाँ वो फतह थी और वो ठीक थी और वो, तो फिर जो अफगानियों को वापस भेजा है आपने, तो वो तो फिर नहीं होना चाहिए था ना? वैसा वो वाले स्टेप्स क्यों उठाए? कितने हजारों लाखों अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको जो उन्होंने रिपेट्रिएशन की जो अब हुआ है सब कुछ, और खवातीन को भी, सबको, तो फिर वो तो नहीं करना चाहिए था अगर इतने अच्छे हैं वो? ना सिर्फ जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उनको वापस भिजवाया है, बल्कि जो डॉक्यूमेंटेड है ना नेक्स्ट फेज में, वो उनको भी वापस भिजवा रहे हैं। तो इससे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के दरमियान जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में मतलब जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुका है। क्योंकि अगर इस तरह के मतलब इनके ताल्लुकात अगर थोड़े से भी अच्छे होते, तो वो एटलीस्ट एक सोल्यूशन जो है वो इसके लिए पैदा कर देते। जैसे उसने खुद कहा है कि पाइपलाइन के लिए जो है वो हम हल की राह निकाल लेंगे, तो इसके लिए भी उनको जो है वो एक हल की राह उनको निकाल देनी चाहिए थी, कि किसी तरह से जो है वो इनका एक एक सोल्यूशन जो है वो मालूम कर लेते और उस पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते। लेकिन कोई भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके साथ जो है वो रिलेशंस वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो एक एक लो प्रोफाइल पे आ गए हैं, और इनको खुद समझ नहीं आ रही है कि उनको किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि उनको क्रिएट किया, यही मसला है कि मुजाहिदीन को क्रिएट किया, फिर जो है उनको समझ नहीं आती कि उनको कैसे हैंडल करें। फिर तालिबान को क्रिएट किया, फिर समझ नहीं आती। अब तालिबान से एक और जो है एक हाई डिग्री आ गई है, जिसको कहते हैं आइस, और इस्लामिक स्टेट या दाइश उसको कहते हैं, और वो भी जो है वो उनको भी मतलब शायद लेटर जो है ये अडॉप्ट कर ले, और फिर जो है वो इनको समझ नहीं आई कि इसको किस तरह से हैंडल कर ले। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हमने अब जिस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे बात की, तो इंडिया की अब हम देख रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है। तो क्या इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा? और क्या तब भी कि हमसाया में एक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मौजूद है लेकिन उनसे ट्रेड नहीं स्टार्ट की जाएगी, तब भी ऐसे ही रहेगा? मेरे ख्याल में इवन अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए ना, तब भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से रहेगी।
اور مطلب جو جتنا بھی فائدہ ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان کو ہی ہوگا، کیونکہ جب آپ ایک تھرڈ لارجسٹ اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کو فائدہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ہوگا، کیونکہ یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ چاہے پاکستان اس کے ساتھ ٹریڈ کر لے یا نہ کرے، لیکن جو ہے فائدہ سارا پاکستان کو ملے گا۔ اور اگین وہی بات آ جاتی ہے، پالیسیز والی بات آ جاتی ہے، سیکیورٹی فوکس جو ہے وہ آ جاتا ہے بیچ میں۔ تو جب تک آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ سیکیورٹی پہ ہے، جب تک آپ اپنے نیبرز کو ایز نیبرز جو ہے وہ آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو دشمن کہتے رہیں گے کہ جی ہمارا جو ہے وہ ایسٹرن سائڈ کا دشمن ہے اور ہمارا جو ہے طالبان بھی دشمن ہو گئے ہیں، تو چائنا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو صرف جو ہے وہ ایک انڈین اوشن ہی رہ جاتا ہے اور بحیرہ عرب ہی رہ جاتا ہے جس کے ساتھ شاید تعلقات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ انوائرمنٹل کیا سچویشن ہے انڈین اوشن میں، تو ان کے ساتھ بھی مطلب اوشن کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ تعلقات مطلب آپ کے نیبرز کے ساتھ اسی طرح رہیں گے تو مطلب آپ اچھائی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایلیٹس ہیں پاکستانی وہ تو بہت اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایلیٹس کا پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایلیٹس کے لیے پاکستان جو ہے نا دس از دا بیسٹ کنٹری ٹو لیو، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں ایلیٹ ہوتا تو میں بھی پاکستان میں ہی رہتا، مجھے بھی مطلب کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ ایلیٹس جو ہیں وہ تو صرف 0.1% ہے پاکستان کے، باقی جو 99.99% لوگ ہیں پاکستان کے، ان کی کوالٹی آف لائف کو ذرا دیکھ لیں، ان کی جو ہے لائف ایکسپیکٹنسی کو آپ ذرا دیکھ لیں اور پھر اس کو ذرا کمپیئر کر لیں دوسرے ممالک کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ مطلب آپ ذرا ایئر کو ذرا دیکھ لیں، ایئر پولوشن کو ذرا دیکھ لیں، اور ابھی جو ہے وہ مزید آپ ذرا دیکھیں گے کہ جو آپ ذرا AQI جس کو کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کو ذرا کمپیئر کریں، پاکستان اور مطلب سارے ساؤتھ ایشین اور وہ ممالک اسی طرح سے ہیں، لیکن آپ ذرا دوسرے ممالک کے ساتھ اس کو ذرا کمپیئر کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہاں پر لوگ کس طرح کا جو ایئر ہے وہ اس کو بریتھ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنی جو ہے وہ ڈیزیزز پیدا ہو رہی ہیں اکانومی کے دکے باقی سیکٹرز کو ذرا دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کتنی گر چکی ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کر میرے پروگرام میں تشریف لائے، آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی۔ تھینکس الاٹ سر۔ Thanks for having me.